فردوس فاطمہ رمضانی صاحبہ کے نظریات، خیالات اور تاثرات کو اس پروگرام کے ذریعے سامعین تک پہنچانے کا کام کیا. بعد ازاں اسے کتابی ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب سے ہے. میں اس تقریب کے عالی وقار صدر محترم پروفیسر ارتکاز افضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. میں یہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں خان صاحب سے بہت بہت شکریہ سر. ان کے بعد میں معروف صحافی گزارش کرتا ہوں کہ آپ شہاب اختر خان صاحب کا سعید خان زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خان شمیم خان صاحب کا استقبال کریں. یک روزہ بہت بہت شکریہ سر. یک روزہ قومی سیمینار وہ معین ادبی، ثقافتی، سیاسی اور بازار ادب اس ناول کا یہاں پر باضابطہ اورنگ آباد پٹن میں پروفیسر ارتکاز افضل صاحب وہ دیگر معزز شخصیات یہاں پر اجرا عمل میں آ رہا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ادب کی مقبول ترین صنف ناول جو ہے وہ زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تو یہاں ناول خود اپنی صنف میں زندگی کا ترجمان ہے، جس میں زندگی کے جیتے جاگتے مرخے واقعات اور مہتاب عالم صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں نے یہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں خان صاحب سے بہت بہت شکریہ سر. ان کے بعد میں معروف صحافی گزارش کرتا ہوں کہ آپ شہاب اختر خان صاحب کا سعید خان زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خان شمیم خان صاحب کا استقبال کریں. یک روزہ بہت بہت شکریہ سر. یک روزہ قومی سیمینار وہ معین ادبی، ثقافتی، سیاسی اور
الہدا گروپ آف اسکول کی جانب سے بھی یہاں مہتاب عالم اور نخانہ نگران جو یہاں آج اس سیمینار میں سیمینار جو استقبال کیا گیا آپ کے دوست فاطمہ رمضانی کی جانب سے، یہ خواتین کی ہاں جاؤ پیچھے جاؤ، پیچھے سے جاؤ، پیچھے جاؤ. آج آ رہا ہے ہزار کچھ سوالیاں، جواب در جوابیاں، کہانیوں کی منزلوں کا یہ تو ایک پڑاؤ ہے. یہ شخص بے سوال آدمی منظروں کے درمیان محبتوں کے موسموں میں خود کو کھوجتا ہوا، یگوں کی خاک چھانتا ہوا یہ کہہ رہا ہے تم بھی تھے کبھی ہماری انجمن. کہانیوں کے سلسلے دراز ہیں، یہ شخص چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے. بہت آج کے اس جلسے کے مین روئے راہ جسے کہا جائے گا، یا جن کی وجہ سے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، مہتاب عالم صاحب، شاہد لطیف صاحب، دیگر تمام معزز حضرات. جب مجھے یہاں اس پروگرام کے تعلق سے بتلایا گیا کہ آپ کو آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے، تو تب میں نے سوچا کہ مہتاب عالم صاحب بھوپال سے آ کر اورنگ آباد میں اس کا اجرا کیوں کر رہے ہیں. جیسا کہ میرے پہلے مقیم بھائی نے بھی بتایا، عتیق سر نے بھی بتلایا، لیکن میں ایک دوسرے اینگل سے اسے دیکھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی مبارکباد آپ لوگوں کو دوں، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے کہ فنکار اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کی فن کی تعریف ہوتی ہے یا قدر ہوتی ہے. اس لحاظ سے ہم قدردان، یعنی ہم اس شیدائی ہے اردو کے، یہ سوچ کر مہتاب عالم صاحب یہاں آئے تو ہم سب کو مبارکباد اس بات کی یہاں پر دیں گے. دوسری چیز یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ شاہد لطیف صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، اور واقعی صحیح بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے جو شیدائی ہے وہ بڑھ گئے ہیں مختلف اس کے اندر، اور جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اردو کو جو ہے تو غضن پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے. جس کی ایک نشانی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آکاش وانی سے ہمارے پروگرام بھی ہٹائے جائے، جو سبرنگ نام کا پروگرام چلتا ہے. تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے تو ہماری تہذیب کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، یہ اگر دور کرنا ہے تو ہم جو اردو دا ہے، اہل اردو دا ایک جگہ پر ہونا چاہیے. میں زیادہ لمبے تو یہ نہیں کروں گا، اختصار سے اپنی بات رکھوں گا. مولانا آزاد کالج، یہ جیسا کہ مکرم بھائی نے بتایا ہے کہ پہلے سے ہی اس اردو کے لیے بہت کچھ کام کرتے آیا ہے. بہت سے ادیب یہاں پر ہمارے کالج پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو برقرار رکھیں گے. آزاد کالج کا پلیٹ فارم اردو کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ میں تو باقی تو یہ نہیں دیکھ پایا، کتاب کے تعلق سے میں زیادہ کچھ تو نہیں بول پایا، یا جیسا سبھی نے بتلایا ہے کہ کتاب دیر سے ملی ہے، لیکن چند جب وقت میں الٹ رہا تھا تو ایک شعر اس کے اندر جو تو مجھے بہت پسند آیا، اور جو حالات حاضرہ پر بھی عکاسی کرتا ہوگا یا پھر یہ ہمارے جذبات کو یہاں پر بتلاتا ہوگا، تو وہ شعر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. لاؤ ایک دیا کر دے موج موج پر روشن، لاؤ ایک دیا کر دے موج موج پر روشن، شام کے اندھیرے میں ڈوبتا کنارہ ہے. اور سب سے آخر میں مہتاب عالم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کتاب کے سلسلے میں بھی، اور مہتاب عالم صاحب اور دیگر مہمان اور تمام حاضرین کو مدعو کرتا ہوں
कि शाम में रात में वो नान फलिया खाने के लिए मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं। इस जलसे के जो है नवाब मोहतरम ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब, जिनकी सरपरस्ती न सिर्फ महताब आलम साहब को बल्कि हम सभी को हासिल है, इस जलसे के मेहमान खुसूसी मोहतरम शाहिद हदीस साहब, जिनके खिताब को आपने सुना, जो सच्ची सीधी रास गुफ्तगू वो करते हैं। साहब वो सहाफ़ी हैं और अपने अंदर के सहाफ़ी को दबा नहीं सकते। इस अदबी मजलिस में शामिल तमाम मोहतरम अफराद, माहिरीन शहर, दोस्त अहबाब, ख़वातीन व हज़रात, इस जलसे को मैं समझता हूँ कि बड़ी दानिशमंदी के साथ महताब आलम एक हमारी शख्सियत के उन्वान से रखा गया। हमारा जहत इसलिए मेरी खुशकिस्मती है, उससे आज मुलाकात हुई, लेकिन न्यूज़ 18 के तौर से जो कभी ई चैनल हुआ करता था, महताब आलम साहब और उनके तमाम अहबाब से मैं वाकिफ रहा। मेरे पेशवा मुकर्ररीन ने, जिनमें हसन शकील साहब, प्रोफेसर हबीब साहब, डॉक्टर साजिद अली साहब, सलीम मोहिउद्दीन शामिल हैं, उन्होंने बहुत इख्तिसार और जामे अंदाज में महताब आलम साहब की शख्सियत, उनके कारहाय नुमाया, उनकी खिदमत, लिसानी, सकाफती, अदबी, सहाफती खिदमत के ताल्लुक से मालूमात वहाँ पहुँचे। शकील साहब ने बहुत अच्छा तारुफ पेश किया, अतीक साहब ने इस नावल के मतन, इसके माखूज़ात मुज़मरात के ताल्लुक से गुफ्तगू की थी। डॉक्टर साजिद अली साहब ने समाजी कवायद, नावल का मनसब, तबका की कशमकश, इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू की। और फिर शाहिद हदीस साहब ने जिस जामे अंदाज में और साफ गोई के साथ इस नावल की तस्नीफ और उसकी जेनेसिस के ताल्लुक से गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर गुफ्तगू किसी तस्नीफ पर, किसी नावल पर या किसी शेरी इंतखाब पर और नहीं हो सकती। और मैं ये भी दावा करूँ कि औरंगाबाद के अलावा और कहीं नहीं हो सकती। महताब आलम साहब वो इंसान है, शायद लतीफ़ साहब वो इंसान है, और ये जो यहाँ पे मौजूद हज़रात मौजूद हैं, ये भी इस कदर महज़्ज़ब है कि साफ हुई के अलावा किसी और बात को पर्दा नहीं करते। लिहाजा आईने जवाब का आपको के बाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं है। ये नावल
कमोबेश 4 दहाइयों तक अंग्रेजी अदब की तदरीस और तहकीक में मसरूफ रहा और मेरा महबूब तरीन मौजू नावल बयानिया। जो कुछ मैंने लिखा, अच्छा बुरा छोटा बड़ा, वो नावल की किताबों से अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उर्दू में मेरा महबूब तरीन मेरी महबूब तरीन सुनत जो है वो गज़ल है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शेर इशारे रम्ज बनाए और उसकी लताफतों से वाबस्ता है। शेर में इख्तिसार, जामियत, रम्ज, बनाया, इशारा, एजाज, ये अहम औसाफ होते हैं और बहुत ही जामिल अंदाज में शायद लतीफ साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया कि नस्ल जो है वो एक ऐसी सिर्फ है, एक ऐसा फॉर्म है जो तफसीलात, जुजियात और कवायद का मुतालबा करता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मुताला निगारान, उर्दू से अकीदत रखने वाले और डॉक्टर मेहताब आलम साहब से मोहब्बत रखने वाले औरंगाबाद की शानदार अदब नवाज हज़रात और मेरे नौजवान साथियों, साथ ही आज की इस तकरीब के मियाँ नौशाद मेरे बड़े भाई डॉक्टर मेहताब आलम साहब, सबसे पहले तो मैं बाज़ार अदब के इजरा पर डॉक्टर मेहताब आलम साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही मुबारकबाद पेश करता हूँ इदारे अदब उर्दू, जिन्होंने इतनी शानदार तकरीब का इनेकाद किया। शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से हमें भी कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए आपने मदद किया, जिसके लिए हम आपके मशहूर हैं। हज़रात, जैसा कि हुक्म हुआ है अपना मकाला पेश करने के लिए, मेरे मकाले का उन्वान है डॉक्टर मेहताब आलम तसानीफ के आईने। किस नाम से पुकारूं तुम्हें सोचता हूँ मैं, किस नाम से पुकारूं तुम्हें सोचता हूँ मैं, हालांकि अल्फाज की वादी में खड़ा हूँ। शायर और अदीब अपने ज़माने का तर्जुमान होता है और अक्कास भी, वो अपने ज़माने के तमाम तकाज़ों की तर्जुमानी करते हुए अपने रोज़मर्रा के औकात पर कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाता है जो आगे चलकर अदब का गिरां कदर सरमाया बन जाती है। सरज़मीन भोपाल में ऐसे कई शौरा व उद्बा को निखारा और संवारा है जिन्होंने अपनी फ़िक्री सलाहियतों, फ़नी महारतों और फ़िक्री बसीरतों से उर्दू अदब को नई आब व ताब अता की। ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत हमेशा आफ्ताब व महताब की तरह रोशन रहेगी। ये उर्दू अदब के ऐसे खादिम हैं जिन्हें ना सताइश की तमन्ना है, ना सिले की परवाह। उन पर तो बस अदब की खिदमत का जुनून गालिब है। ऐसे ही खादिम अदब में डॉक्टर मेहताब आलम का शुमार होता है। 1972 में जौनपुर उत्तर प्रदेश के शाहगंज में एक खूबसूरत बच्चे ने आंखें खोली जो आगे चलकर डॉक्टर मेहताब आलम के नाम से दुनिया अदब में पहचाने जाने लगा। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और एमए की तालीम हासिल की। बाद यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी के लिए तहकीकी मकाला सुपुर्द कलम किया और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। खुशी, हैरत और फ़ख्र होता है जब हम देखते हैं कि डॉक्टर मेहताब आलम ने अपनी सानवी तालीम तो साइंस के ज़रिए और एमए पीएचडी इल्म सियासियात के ज़रिए हासिल की, बावजूद उसके उर्दू पूरी ज़िंदगी उर्दू की खिदमत का बेड़ा उठाया। ईटीवी उर्दू की वाबस्तगी ने भोपाल का रुख करने पर मजबूर किया। फिर क्या था,
भोपाल इनका और ये भोपाल की। महताब साहब को खालिक कायनात ने ज़बरदस्त सलाहियतों से नवाजा है। जहां वो टीवी सहाफ़ी होने के साथ ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर की हैसियत से अपनी सलाहियतों को तस्लीम करा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बहैसियत शायर, नाज़िम, मुकर्रिर, अदीब, नज़्र निगार, मुहक्किक, मौर्रिख और अब नाविल निगार अपनी अहमियत का एहसास भी करवा रहे हैं। तारीख पर भी आपको मुकम्मल दस्तरस हासिल है। जब तारीख पर बात करते हैं तो माजी के एक एक दरीचे को हटाते हुए चले जाते हैं। नस्र भी ऐसी तहरीर करते हैं कि कारी को उकताहट का एहसास नहीं होता। जब वो शायरी के मैदान में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है गोया अल्फाज उनके सामने कतार बांधे खड़े हैं। सेमिनारों में आपकी शिरकत कामयाबी की ज़मानत है। आपके सैकड़ों मज़ामीन मुल्क के मशहूर मारूफ रसाइल में शाये होकर दाद और तहसीन हासिल कर चुके हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपकी 14 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी है। पॉलिटिकल थ्योरी, सबा रंग खुशबू, मंजरों के दरमियान, इंतज़ार, आदाब, चाहत और मौसम मोहब्बतों के ये 6 मजमूए कलाम हैं। ख़ास मुलाकात, कभी तुम थे, हमारी अंजुमन थी, वस्त हिंद में उर्दू अदब 2 हिस्सों में, गैर मुस्लिम आशिकाने उर्दू और वस्त हिंद उर्दू नक्कात की हैसियत से चिराग का जायज़ा, नाविल, तहजीब और अब बाज़ार अदब। ये तमाम तसानीफ अदब में इजाफी अहमियत की हामिल है। जहाँ तक शायरी की बात है, डॉक्टर महताब आलम बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उनके कलाम के मुताले से पता चलता है कि उनके यहाँ गज़ल अपनी दिलकशी, दिलरुबाई, हुस्न व जमाल के साथ अपनी तमाम तर खुसूसियात और मुनफरद लब व लहज़े के साथ जलवागर है। वो अपने तजुर्बात, एहसासात और मुशाहिदात को शायरी में समोने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ है। आपके कलाम में ताजगी, शगुफ्तगी बदर्जे अतम मौजूद है। चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाएं जो डॉक्टर महताब आलम की शेरी अजमत का एहसास कराने के लिए काफ़ी है। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। जिनसे अक्सर हमें तकलीफ पहुंचती है वो लोग, जिनसे अक्सर हमें तकलीफ पहुंचती है वो लोग, बेशतर अपने ही अहबाब हुआ करते हैं। और मुझे उनका ये शेर बहुत पसंद है कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। ऐसे सैकड़ों दिलनशीन अशार डॉक्टर साहब के मजमे कलाम में हमें दिखाई देते हैं। माजरत के साथ कि सर आपका प्रोग्राम सबरंग 1 तारीख से ख़त्म हो गया है। उनके साथ माजरत के साथ आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल आली मुकाम मजहर फारूकी साहब, 2-3 दिन से मैं उर्दू औरंगाबाद टाइम्स के अंदर जिनको पढ़ रहा हूँ, मैनचेस्टर स्कूल के खान साहब, जल्दी उनका नाम मुझे याद नहीं आया जी। उसके बाद उनके पहलू में बैठे खान शमीम साहब, महताब साहब के रस्म इजरा के लिए ये सब आफ्ताब बैठे हैं। और ये आफ्ताब आए और ये दरअसल सही औरंगाबाद दक्कन के आफ्ताब हैं। मेरे सामने बैठे सईद खान जैदी साहब, शकील अहमद खान साहब, कहाँ के नाम में गिनाऊँ, सब लोग ने अपना कीमती वक्त और बिलखुसूस मेरे अजीज़ प्रोफेसर फैयाज फारूकी साहब, और एक नाम मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब, ये सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। हाज़रीन, ख़वातीन, मेरे PhD के कुछ तालिबात हैं, मौलाना हजरात, और ये उम्मीद है कि बाद में जाके ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेंगे वो क़ज़ा, और ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।
इदारा अदब उर्दू और मस्कत कंस्ट्रक्शन, इन दो अहम इदारों के इश्तराक से आज एक बहुत ही अहम और महज़ब अदबी महफ़िल मुनक़िद हुई। इस महफ़िल का बुनियादी मकसद ये था कि भोपाल के रहने वाले और चैनल 18 के बहुत ही अहम चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुदीर जो हैं, उनकी तसनीफ़ करदा नावल बाज़ार अदब, उसका इफ्तिताह मुनक़िद किया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में कमो बेश 5 लोगों ने अपने बहुत ही मौक़र मक़ाले पेश किए, जिनमें मेहताब आलम साहब की सवानही कवायद, उनकी सरगर्मियाँ, उन्होंने जो तहज़ीब, सक़ाफ़त और माशरत के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उनकी तफसील पेश की। कुछ हज़रात ने इस नावल की जुज़ियात और तफसीलात, इस नावल के मनसब, इसके मतन, इसके मौज़ूआत, इसके ताल्लुक़ से बात की। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुंबई से सियासत इनक़लाब जो बहुत अहम अखबार है, उसके मुदीर आला शाहिद लतीफ़ तशरीफ़ लाए। शाहिद लतीफ़ साहब ने अपनी तकरीर में नावल के ताल्लुक़ से, उर्दू माशरत के ताल्लुक़ से, उर्दू ज़बान की ज़ुबों हाली के ताल्लुक़ से और ज़बान से हमारी वाबस्तगी के ताल्लुक़ से कई सवालात क़ायम किए, उन पर अहम मुखातबा पेश किया। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शुस्ता, शाइस्ता और बहुत ही कारामद एक महफ़िल मुनक़िद हुई, जिसके लिए मैं इसके जो मुंतज़मीन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मौजूदा हालत सब रंग बंद हो चुका है, उस तरह आज हम सब यहाँ पर जमा हुए थे। डॉक्टर मेहताब आलम की किताब बाज़ार अदब का इजरा था यहाँ पर। कई बहुत अहम शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने उनकी फ़न पर, उनकी शख्सियत पर, इस किताब पर अपने तासुरात बयान किए यहाँ पर। और इस किताब के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और जो है वो इस किताब को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि ये एक नए फॉर्मेट में लिखा हुआ ऐसा नावल है जिसमें जो है वो हम अपने आसपास कदरों को मिटता हुआ देख रहे हैं, तहज़ीब को मिटता हुआ देख रहे हैं। हमारा इल्म अदब का जो सतह हुआ करती थी, जो बुलंदी हुआ करती थी, वो अब नहीं रह गई है ना। हम बहुत सारे समझौतों और मुसालहतों का शिकार हो गए हैं। हम जो है वो मादी मुनफ़ियतों की तरफ दौड़ने लगे हैं। और अदब, ज़बान वगैरह वगैरह के बारे, तहज़ीब, इसके ताल्लुक़ से हमारी हसासियत जो है वो कम हो गई है। तो इस मौजू का अहाता करने वाली बहुत ही उम्दा किताब है, जिसमें ज़्यादातर यानी नावल कहा गया है, लेकिन इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि ये बातचीत के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए आगे बढ़ती है और मुख्तलिफ़ अदवार को, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को उनका अहाता करते हुए ये नावल मुकम्मल होता है। तकरीबन 450 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अब ये कि मैंने जैसे कि इस सिलसिले में बात कही कि किताबें बहुत अच्छी, बहुत मेहनत से, बहुत ही आला पाए की लिखी जा रही हैं और आइंदा भी लिखी जाएंगी, लेकिन ये कि उन किताबों के पढ़ने वाले बहरहाल कम हो रहे हैं। तो इस तरफ जो है वो सिर्फ उर्दू वालों को नहीं बल्कि हर भाषा के लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब से 20 बरस पहले हम कहते थे कि भाई उर्दू पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। अब ये कि हम सारी ज़बानों के लोग जो है वो हमसे भी शिकायत करते हैं और मिली जुली महफ़िलों में हमको एक दूसरे से यही बात सुनने को मिलती है कि अंग्रेज़ी किताबों के पढ़ने का चलन कम हो रहा है, मराठी किताबों के पढ़ने का चलन कम हो रहा है। तो ये तमाम ज़बानों के लिए एक चैलेंज है कि उन ज़बान के लोग किस तरह से पढ़ने के सिलसिले को दोबारा शुरू करवा सकते हैं। अब पढ़ने का सिलसिला ज़रूरी नहीं कि आप कागज़ पर छपी हुई किताब हाथ में लेकर पढ़ें, बल्कि डिजिटल दौर है तो डिजिटल फॉर्म उसका वो भी है, इस तरह से उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आज की जनरेशन जो है मोबाइल पर कुछ पढ़ना चाहती है तो मोबाइल किताब जो है वो मोबाइल पे फराहम की जा सकती है। ये डिजिटल अहद का तकाज़ा है, लेकिन किताब पढ़ी जानी चाहिए, बहर सूरत पढ़ी जानी चाहिए, चाहे वो किसी ज़बान की किताब हो और किसी सिन्फ की किताब हो, उसको पढ़ा जाना ज़रूरी है। इसलिए कि किताब का मुताला
آپ کے علم میں ہی اضافہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے ذہن کے مختلف گوشوں کو وا کرتا ہے، اس کے دریچوں کو وا کرتا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، آپ کے پرسپیکٹیو کو، آپ کے ذہنی جو کائنات ہے اس کو وسیع کرتا ہے۔ تو اس لیے کتابوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں پڑھیں، چاہے کسی زبان کی کتاب پڑھیں، لیکن کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کا ذہن وسیع نہیں ہوگا، اور آج کا دور جو ہے وہ نئے آئیڈیاز کا دور ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں حکومت کون کرتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ جواب دیتے ہیں۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں آئیڈیاز حکومت کرتی ہے، آئیڈیاز کی حکومت ہے، یعنی جس کے پاس میں بہتر آئیڈیاز ہے، زیادہ مؤثر آئیڈیاز ہے، زیادہ امپلیمنٹیبل آئیڈیاز ہے، وہ جو ہے وہ اپنی آئیڈیاز کے ذریعے اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پریسیڈنشل الیکشن امریکہ کا جو ہوا تو پریسیڈنٹ کو کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، کن باتوں کا احاطہ کرنا ہے، یہ سارے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور آئیڈیاز کی پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آئیڈیاز اور رولنگ، تو آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کو کتابوں سے ملتے ہیں۔ جب آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات جو اس کتاب میں درج نہیں ہے وہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آئیڈیا جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس طریقے سے ہم کو نئی نسل کو اپروچ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ میرا نام شاہد لطیف۔ سر اس کے علاوہ اس پروگرام سے ہٹ کے سوال ہے، موجودہ حکومت کی پالیسی اور اردو اخبارات کا مستقبل، چونکہ آپ ایک موخر اخبار کے مدیر اعلیٰ ہیں، اس لحاظ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اردو اخبارات کتنے سروائیو کر رہے ہیں آج کے دور؟ نہیں دیکھیے، چھوٹے اخبارات کے لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ چھوٹے اخبارات جو ضلعی سطح پر نکلتے ہیں، جو مختلف شہروں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں، اور حکومت کا طرز عمل جو ہے وہ تمام اخبارات کے ساتھ بہت اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ بہت سارے دوسرے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں ابلاغ کے۔ اب جو ہے وہ ریڈیو ایف ایم جو ہے وہ ایک نیا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب اس کو زیادہ طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ویب سائٹ جرنلزم ہے، اس کے بعد میں اپنے طور پہ جو کیا کہنا چاہیے کہ الگ الگ پارٹیاں جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیے ہوئے جو بہت جنگی پیمانے پہ کام کرتا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ پرنٹ میڈیم کی طرف سے توجہ تو کم ہو جائے گی، اور جو اشتہارات ملتے تھے وہ اشتہارات کم ہو گئے، نیوز پرنٹ کا کوٹا جو ملتا تھا اس کا بھی مسئلہ ہے، اور ویسے بھی ایک نظر التفات جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ سروائیول کا ایک مسئلہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹے اخبارات جو مختلف شہروں سے اور اضلاع سے نکلتے ہیں، وہ اگر اپنے قاری کی ضرورت کو محسوس کریں، وہ ضرورت جو خود قاری محسوس نہیں کر رہا ہے، اس ضرورت کا اس کو احساس دلوائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سروائیول کا ایک راستہ نکال سکتے ہیں۔ روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔